Hello everyone, welcome to IHH Pet Industries Helping Hands.com. I'm your host Pratik Vaishnav and you are watching our show Interview Experience. And today we have our guest Hemant Majhi who have cracked Capgemini interview in 2020. So let's watch it. यदि आप फ्रेशर हैं एंड आप कैपजेमिनी का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में हमने कैंडिडेट के साथ वो सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, जैसे उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनकी स्कूलिंग में, उनके 10th एंड 12th में उनके मार्क्स एंड उनके कॉलेज सिलेक्शन एंड उन्होंने कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करी जिसका उन्हें इंटरव्यू में क्या किस तरीके से फ़ायदा मिला, उनके कॉलेज की स्टडीज़ के दौरान उन्होंने प्लेसमेंट की किस तरीके से प्रिपरेशन करी एंड उनका किस तरीके से इंटर्नशिप हुआ ये और इस इंटर्नशिप का उन्हें क्या बेनिफिट्स मिला, ये हम डिस्कस करते हैं। और कैपजेमिनी के इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने किस तरीके से रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया एंड उसके लिए क्या क्या स्टडीज़ करी, साथ ही उनके इंटरव्यू में उन्हें HR राउंड में एंड टेक्निकल राउंड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्हें इंटरव्यू क्रैक करने के बाद उन्हें कितनी एनुअल CTC ऑफ़र की गई, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। वो सारे पॉइंट्स स्क्रीन पर शो हो रहे हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। So, welcome to IHH Pet Industries Helping Hands.com. I am Pratik Vaishnav, and here we have a guest, our guest Hemant with us, and Hemant Majhi is with us, and he is going to tell you more about his experience throughout the experience about Capgemini, how he got placed in the company Capgemini, and his experience through interview and the assessment test and all, वो जिन चीज़ों से गुजरे हैं हम उनके बारे में पूरी तरह से एक्सपीरियंस उनका लेंगे। एंड सो वेलकम टू यू ऑल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, प्लीज हेमंत आप थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Yeah, sure. So, hello Pratik, first of all, right? And thanks for thanks for making me here, welcoming me here. It's a very nice platform, and if I want to introduce myself, so hello everyone, my name is Hemant Majhi. I have just completed my engineering from Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha, Madhya Pradesh, and my branch is computer science and engineering. I have completed my engineering with a CGPA of 7.3, and I like to do extracurricular also with my acads. I have very much active in extracurriculars, like I play volleyball, and I represent 2 of my college clubs, like there is one Mirage, the photography club of my college, and I am part of the Codians club of my college. Okay. So these are some extracurriculars about me. And I have done my higher education from a school named Sunriser Senior Secondary School. It's in Vidisha only. And I have done my 10th higher secondary only from Kendriya Vidyalaya, Vidisha. So that's all about myself. So you have studied from Sati, right? Sati, we are actually our organization Industries Helping Hands.com. Let me tell you a small brief about our company. We as an Industries Helping Hands acts as a bridge between the companies and candidates and colleges all through, so that we can help the candidates, pass out candidates और जो कॉलेजेस में भी फाइनल ईयर्स में उनको हम हेल्प करते हैं ताकि वो ऑफलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में अपने आप को ज्वाइन कर सके। एंड सो अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन। वी ऑर्गेनाइज ऑफ कैंपस ड्राइव्स एंड आप अभी अपने बारे में बताएंगे कैपजेमिनी के बारे में, हाउ यू वर्क प्लेस। So there are many candidates, means competition is very high, right? So many candidates are there जो उन्हें प्लेस नहीं हो पाते, right? परसेंटेज हाई रहता है, मीन्स अराउंड अगर 100% कैंडिडेट्स बैठते हैं तो मुश्किल से कॉलेज से 30% 20% लोग ही प्लेस हो पाते हैं।
तो many candidates are there who are left unplaced and looking for the job for many offline campuses, right? And in a brief, तो जैसे ऑफलाइन कैंपस में हम लोग जाते हैं, many lot of big companies are there like Accenture, Infosys वगैरह हैं, तो Infosys वगैरह हैं आपके पास। तो उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की कंपनीज हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम मैकेनिकल कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस। तो हम उनको एक तरीके से प्लेटफॉर्म देते हैं एंड हम प्री प्लेसमेंट टॉक्स जनरली, जैसे आपका भी पूरा सेशन जो हुआ होगा ऑनलाइन हुआ होगा, वर्चुअल हुआ होगा, राइट? सो हम लोग भी वर्चुअल प्री प्लेसमेंट टॉक्स करवाते हैं बिकॉज इन द पैंडेमिक आप ऑफलाइन प्री प्लेसमेंट टॉक्स नहीं करा सकते हैं, राइट? सो हम लोग ऑनलाइन प्री प्लेसमेंट टॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मैनी कंपनीज कम एंड जॉइन विद अस, एचआर ऑफ द कंपनीज केम and they describe and interact with the candidates who are very interested in the jobs, right? तो हम लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं चीजें। सो हेमंत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक आपने 10th भी विदिशा से किया है एंड फिर उसके बाद आपने केंद्रीय विद्यालय से 12th किया है, राइट? तो आपका मीन्स आप पढ़ने में मतलब किस तरीके से एवरेज थे या मतलब एवरेज ब्रिलियंट स्टूडेंट में थे? यस, सो मैं बताऊंगा। मतलब ऐसा था कि 9th 10th तक मेरा स्कोर काफी अच्छा रहा, मींस लाइक आई स्कोर्ड मींस एवरेज, अबव एवरेज आई एम स्टूडेंट, बट एज in 11th 12th I also went to Kota like for preparing for IIT JEE, and so lots of ups and downs are there and we keep on focusing on studies। मैंने काफी हार्ड वर्क किया और लेकिन फिर भी 12th कुछ उतना खास नहीं रहा, तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स थे और काफी फेलियर्स भी देख लिए थे, तो ऐसा लग रहा था आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन कॉलेज का ऑप्शन आया, फिर कॉलेज सेलेक्ट किया। मतलब पहले तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हो गया था 12th तक, मतलब काफी फोकस करने के बाद भी, पर मार्क्स जो थे मेरे वो एक एवरेज स्टूडेंट के ही थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं तो एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए, कि ठीक है जो था रिग्रेट्स थे और जो पास में मिस्टेक्स करी थी तो उन्हीं को थी, अब ये गलतियां कर दी हैं तो अब क्यों ना इन गलतियों को हटा के कुछ एक नया करके अपने कंसंट्रेशन को ना, मैं मतलब अपने पाथ से डाइवर्ट ना हो और फोकस करते हो। सो वैसा मैंने एक स्टार्ट कॉलेज में किया। अच्छा, तो आपके कॉलेज के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। हम लोग ऑलरेडी एसोसिएट हैं आपके कॉलेज से। हमने आपके कई कैंडिडेट्स आपके कॉलेज के थे, आपके जूनियर्स हैं कैंडिडेट्स, उन लोग को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी हैं एंड आपके कॉलेज के टीएपी हमसे कनेक्टेड हैं एंड हमने वहाँ प्लेसमेंट ड्राइव्स करवाए हैं, फ्री असेसमेंट टेस्ट IHHPT जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमने उनका असेसमेंट किया है एंड वी आर इन कांटेक्ट विद द टीएनपी एंड many candidates are placed from Sati through our organization। so Sati के बारे में ये पता है मुझे कि आपके जो एलुमिनी है कैलाश सत्यार्थी, वो भी शायद सती से ही पास आउट है एंड सती एक वेरी गुड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। सो आप 12th तक आप एक मतलब एवरेज हो गए थे, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स वगैरह अच्छे थे। देन आपका मतलब क्या प्लान था, मतलब आप 12th के बाद आप सोच रहे थे कि आप तो आईआईटी के लिए स्टडी कर रहे थे, तो आपने कैसे आपका प्रोसेस हुआ, कौन से एग्जाम को फेस करके आप कॉलेज में मतलब एडमिशन हुआ? सो 12th में ऐसे मैंने प्लान तो कर लिया था कि इंजीनियरिंग लेना है, मैथ्स ले चुका था पहले 11th 12th में, और अच्छे कॉलेज की वो प्रिपरेशन के लिए थी कि एनआईटी या आईआईटीज ट्राई करना है और ऐसे कोई कॉलेज मिल जाए। सो मार्क्स जेईई में आए, कुछ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। लेकिन फिर भी एसआईटीआई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर एमपी के भी, सो काफी अच्छी रैंक रखता है और गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑब्वियसली ऑटोनोमस कॉलेज है, काफी
वैल्यूएबल था मेरे लिए अभी कि एसएटीआई भी मुझे मिल जाए। और या मैंने काउंसलिंग भरी, आईआईटी जेई मेंस होते हैं जो कि हम लोग को एग्जाम देने पड़ते हैं इंजीनियरिंग के लिए, उसमें या उसके स्कोर के बेस पे मुझे एसएटीआई मिल गया काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग मैंने भरी थी, सो या सेकंड काउंसलिंग में आई गॉट द मींस कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई सेकंड काउंसलिंग में। तो ब्रांच चूजिंग के समय आप क्या सोचे थे? मींस आप पहले से रेडी थे कंप्यूटर साइंस के लिए, कि आप कुछ और में जाना चाहते थे, या आपका क्या प्लान था ब्रांच? हाँ, या मैं तो जैसे कि अगर ब्रांच से आपने पूछा है, मैं बताऊंगा कि 10th या 9th से ही मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा था। कि 9th में ही हमें कंप्यूटर सब्जेक्ट रहता था, तो उसमें हमें HTML पढ़ाया गया था, HTML वेब डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा था। तो HTML में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था तब से ही, और मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि इंजीनियरिंग ही चूज करना है और कंप्यूटर साइंस ही करना है। जब ब्रांच चॉइस का ऑप्शन आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ब्रांच कंप्यूटर साइंस ना मिल पाए, कि मतलब लगता है कोई लोअर ब्रांच मिले, कि मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन मतलब वही की प्रिपरेशन की और फिल किया, और वहां पे रिजल्ट कंप्यूटर साइंस मिल गया। क्योंकि अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता तो सेकंड ईयर में भी ट्राई करता, मैं ब्रांच शिफ्ट होता है तो उससे भी कोशिश करता है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए। ऐसा मेरा फोकस था। इट्स ए गुड थिंग कि आप मतलब शुरू से जो फोकस करके रखे थे, and you got means आपको ब्रांच मिल गई। So how was your journey? Means so all the 4 years in between the engineering, first year, second year, it's like शुरुआत में हम इंजीनियरिंग करते हैं तो बहुत सारे मतलब हम लोग शुरू में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हम इतने स्टडीज करेंगे, फिर उसके बाद आपका कैसी रही जर्नी आपके? तो जर्नी और ऐसा जैसे मैंने बताया कि मैंने प्लान कर लिया था कि अब इंजीनियरिंग अच्छे से करना है, काफी फोकस होके रहना है ये वो। फिर जब इंजीनियरिंग में जब अपन एंटर करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो क्या रहता है कि बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। कि एक कॉलेज में आके स्कूल से एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो रहता है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, एक माहौल एकदम डिफरेंट होता है कि हमें सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, चीजें कैसे प्रोसीड करती हैं वो सब चीजें चेंज हो जाती हैं, असाइनमेंट्स के तरीके बदल जाते हैं, सारी चीजें चेंज हो जाती है। उन चीजों को धीरे धीरे सीखा कॉलेज में शुरू के मतलब 6 months में। और ऐसा हो रहा था कि उस चक्कर में उतना स्टडी पे भी फोकस नहीं हो पाया, क्योंकि चीजें सीख रहे हैं। स्टडी मैंने करी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करिकुलर और सारी चीजें सीखते साथ, मतलब मैं एक इंजीनियरिंग में जो कहा जाता है कि अपन को इंजीनियरिंग में एक्सप्लोर करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट। व्हाट इज इंजीनियरिंग, एक्सप्लोर करना है। मींस मैंने फर्स्ट ईयर ऐसे रहता है, बेसिक इंजीनियरिंग रहती है, तो उसमें सारी इंजीनियरिंग का हमें पढ़ाया जाता है, कि सिविल मैकेनिकल, so हमने वर्कशॉप अटेंड करी, सिविल में हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, सारी चीजें सीखी। और उससे मैं एक एक्सप्लोरेशन काफी अच्छा हो रहा था, तो मैं काफी अच्छे से सारे डोमेन्स को देख रहा था, और कंप्यूटर साइंस में भी मैं काफी अच्छे प्रोसीड कर रहा था। अब अगर मैं बात करूं सेकंड थर्ड ईयर की, फर्स्ट ईयर के एंड में कि एक चीज अच्छी हुई कि कॉलेज की तरफ से हमें एक इंटर्नशिप मिल गई, गवर्नमेंट इंटर्नशिप थी वो। वो हम इंटर्नशिप का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, जब हमारा फर्स्ट ईयर एंड हो चुका था, समर वेकेशन आता है, समर वेकेशन में हमें इंटर्नशिप कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड हो गई थी। तो उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD के थ्रू इंटर्नशिप थी, उन्नत भारत अभियान उसका नाम था। और उसके लिए हमें गवर्नमेंट में जाके रूरल एरियाज में वर्क करना था, वहां पे लाइक डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करके वहां की लाइक लाइफस्टाइल क्या है, हाउ मच गवर्नमेंट स्कीम्स आर रीचिंग देयर, ये सारी चीजें हमें पता करनी थी। और फिर हमें पूरी फाइल बना के उस हमें भेजना था। उसके थ्रू हमें नीति आयोग से भी हमने टाई अप किया, और हमने बच्चों को गांव में पढ़ाया भी कि लाइक दे डोंट गो टू स्कूल। हमें वो चीज चेंज करनी थी कि बच्चों को कैसे स्कूल की तरफ भेजा जाए। हमने वो चीज भी इस इंटर्नशिप के साथ सीखी। ये मेरा फर्स्ट ईयर का एंड हो गया। इट्स ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। मींस आपको शुरुआत में ईमेल खोलने का जो मौका मिलता है, जब आप मींस इंजीनियरिंग इज लाइक इन माय व्यूज, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कवर करते हैं, एंड सिर्फ स्टडीज होती हैं एंड एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ इसी में जो स्टिक रह जाता है, तो उसके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट करना बहुत कठिन होता है। एंड इंजीनियरिंग इज लाइक प्रोफेशनल स्टडीज, राइट? So means आप जैसे ही पास आउट होते हैं, यू विल गेट मैनेजरियल जॉब्स, तो आपको मैनेजरियल स्किल्स आने चाहिए। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग आपको इंटर्नशिप का मौका मिला। एंड इंटर्नशिप से मुझे याद आया कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है industrycyclinghands.com, we are providing such kind of
internships to the candidates. We have many companies tied up with us in different states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, in Mohali, Punjab. Like there are many companies, and we are tied up with them, and they are providing internship for the local candidates. So एक internship जो होता है in between the studies, right? ये बहुत essential होता है मेरे ख्याल से, and मैं जैसे हाँ तो you can carry on after first year आपको internship के बाद हाँ तो या बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा इंटर्नशिप्स और या लाइक अदर एक्स्ट्रा करिकुलर इंपॉर्टेंट होता है कैसे इंपॉर्टेंट होता है मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब आप 4 साल का इंजीनियरिंग खत्म कर लेते हो सो सिर्फ आपका स्टडीज नहीं देखे जाते कि आपका सीजीपीए कितना है ये देखा जाता है कि उसके साथ आपने क्या स्किल्स गेन करी क्या आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है काफी सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो मैटर करते हैं और मैनेजरियल स्किल प्रेजेंटेशन स्किल ये लीडरशिप स्किल आप एक टीम वर्कर है कि नहीं तो ये सारी चीजें आपको कॉलेज के दौरान सीखनी होती हैं कि विद स्टडीज लाइक आपकी और टेक स्किल्स भी लाइक प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको चलाने आते हैं ये सारी चीजें मैटर करती है काफी ज्यादा राइट नाउ इन दिस एरा means if you don't know programming and you are an engineering candidate means you have to work hard to get means आपको प्रोग्रामिंग सीखना आपको सॉफ्टवेयर के साथ और इन सब चीजों को नॉलेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नो राइट नाउ मैनी कैंडिडेट्स मीन्स कई कैंडिडेट्स ज्वाइन होते हैं इंजीनियरिंग राइट देयर उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता मीन्स सम केम फ्रॉम थर्ड टायर सिटीज एंड कुछ फर्स्ट टायर सिटीज के होते हैं उनके बैकग्राउंड अच्छे होते हैं उनके घर में अच्छे पेरेंट्स होते हैं स्टडी का अच्छा माहौल होता है कहीं क्या नहीं होता तो आपको इंजीनियरिंग करते करते जैसे इंटर्नशिप का मौका मिलता है या फिर इन सब चीजों में उनको इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है तो या प्रोग्रामिंग जो होता है वो आज के समय में मस्ट है मेरे ख्याल से फॉर एवरी ब्रांचेस या सो मैं आगे बताऊं जैसे कि हाँ तो सेकेंड ईयर में जैसे क्या हुआ सेकेंड ईयर में मैंने काफी सारे मतलब टेक इवेंट्स होते हैं कॉलेज में टेक फेस्ट होते हैं और कल्चरल फेस्ट होते हैं और भी काफी सारे इवेंट्स होते हैं क्लब्स के तो उनमें भी मैंने काफी पार्टिसिपेट किया क्लब्स को ज्वाइन करने की भी कोशिश करी 1-2 क्लब में मैं फेल भी हुआ नहीं ज्वाइन कर पाया पर 1-2 क्लब्स में ज्वाइन भी किया स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया काफी सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें मैंने पार्ट लिया उसके बाद मैं स्टडीज भी कर रहा था और सेकेंड ईयर के एंड तक मुझे एक और इंटर्नशिप मिली जो कि जियो टेलीकॉम में है जैसे कि सबको पता ही है जियो के बारे में तो उसमें मुझे या रिसर्च इंटर्नशिप की एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि एक नेशनल लेवल इंटर्नशिप थी और इसमें लाइक माइलस्टोन्स भी थे कि अगर आप ऐसा ऐसा वर्क करेंगे मतलब वर्क्स के हिसाब से आपको माइलस्टोन्स थे तो उसमें भी मैंने प्लैटिनम माइलस्टोन अचीव किया जो कि 3rd माइलस्टोन था उस लेवल का और या सो मतलब ये मेरी सेकंड इंटर्नशिप थी सेकंड ईयर के टाइम पे फिर थर्ड ईयर इंटर्नशिप है इसमें आपका रिक्वायरमेंट क्या था मींस आपको काम क्या मिला था एंड आप के प्रोग्रामिंग स्किल्स पे बेस था कि मैनेजिंग करने का हाँ सो ये उतना ज्यादा टेक फोकस नहीं था मींस या ये वाला जो इंटर्नशिप थी इसके इंटर्नशिप में आपको बताता हूँ क्या था एक्चुअली कि इस इंटर्नशिप में ये था कि जो बहुत सारे मीडियम लाइक एसएमबीज बोलते हैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस सो उनसे इंटरेक्ट करना था और उनके लाइक वर्क प्रोग्रेस को देखना था कि वो कैसे अपने बिजनेसेस को चलाते हैं लाइक वो हाँ अपने लाइक बैक एंड वो कैसे चीजों को हैंडल करते हैं कैसे उनका लाइक डिलीवरीज जो रहती हैं वो सारी चीजों को संभालते हैं उनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो कैसे वर्क करता है सो ये इंटर्नशिप का मेन जो एम था वो ये था कि उनकी सारी चीजों पे जहां जहां वो लैग कर रहे हैं उनको न्यू एरा के टेक्नोलॉजी यूज कराना जियो का ये सिनेरियो था कि लाइक न्यू मॉडर्न सॉफ्टवेयर जो जियो प्रोवाइड कर रहा था वो कैसे वो यूज कर सकते हैं अपने टेक डोमेन में बहुत सारे लोग बिल भी यूज नहीं करते पुराने हैंड रिटन बिल्स यूज करते हैं वेब कैम सीसीटीवी ऑनलाइन मीटिंग्स काफी सारी ऐसी चीजें हैं तो हमने ऐसे काफी सारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस से इंटरेक्ट किया और उनके बिजनेस को जाना सो आपका सेकेंड ईयर के बाद भी एक इंटर्नशिप हुआ एंड फिर जब आप थर्ड ईयर में मींस आपका जो थर्ड ईयर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है उसके बारे में थोड़ा बताएं हाँ सो थर्ड ईयर जब स्टार्ट हुआ फिर मेरा ऐसा था कि अब काफी सारे इवेंट्स वगैरह कर लिए हैं अब थोड़ा
फोकस होते हैं, Yes. स्टडीज करते हैं। सो स्टडीज का टाइम आ चुका था कि और मतलब अच्छी इंटर्नशिप चाहिए है, टेक इंटर्नशिप नहीं थी अभी तक मेरे पास। Yes. ऐसा सब कुछ करके मैंने प्लान किया। हम्म, सो फिर मैंने स्टडीज करी और लाइक थर्ड ईयर के लाइक मिड तक मेरे को एक कॉलेज से एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक ट्यूटर की इंटर्नशिप थी। इट्स अ इंटर्नशिप फॉर टीचिंग स्मॉल किड्स। इट्स अ स्टार्टअप नेम लीडो। सो लीडो इज प्रोवाइडिंग अ ट्यूटर इंटर्नशिप। सो वो भी उसमें मैंने पार्ट लिया, वो कॉलेज की तरफ से थी और उसमें टेस्ट थे, लाइक एक स्मॉल वीडियो इंटरव्यू भी था। सो वो सब प्रोसेस हुई और वो भी मैं क्रैक कर लिया मैंने, और मेरे को एक ट्यूटर इंटर्नशिप मिल गई। सो उसमें मैंने स्कूल किड्स को काफी सारी चीजें पढ़ाई, जैसे कि मैथ्स, साइंस और साथ में कोडिंग के भी काफी सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे। मैंने पाइथन बच्चों को पढ़ाया, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट भी मैंने पढ़ाया। ऐप डेवलपमेंट में मेरा प्रोजेक्ट था, तो मुझे ऐप डेवलपमेंट काफी अच्छे से आता था। तो वो सारी चीजें भी मैंने इस इंटर्नशिप में पढ़ी। लाइक ये वाला इंटर्नशिप आपके लिए एक मींस टेक वाला मींस आप ट्यूटर भी थे एंड आपके लिए एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था मींस आई थिंक से कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिल रही थी ना, राइट? आप पढ़ा रहे हैं तो आपको नॉलेज गेन करनी होती है, राइट? जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको नॉलेज भी गेन हुई एंड आपने उसको मतलब आपका नॉलेज बहुत बढ़ गया होगा। क्योंकि बच्चे बहुत सिली क्वेश्चन पूछते हैं, वो ऐसी एकदम चीजें पूछ लेते हैं कि मतलब 9-10 के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा था, 10 तक मैक्स स्टूडेंट्स पढ़ाए मैंने, क्योंकि कोडिंग तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। सो 10 तक भी सो उनके कई बार ऐसे डाउट्स आते हैं कि अपन एक बार क्वेश्चन में आ जाते हैं कि यार लाइक सीरियसली इसका क्या आंसर होगा, और वो बहुत छोटी चीज होती है। सो उससे फिर और पढ़ना पड़ता है, फिर उनको बताना पड़ता है। तो ऐसी चीजें काफी ज्यादा स्किल्स डेवलपमेंट इस इंटर्नशिप से। और जैसे कि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मुझे और ज्यादा उनको पढ़ना पड़ा, कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा आगे के आ रहे थे, तो कुछ चीजें मुझे नहीं भी पता होती थी, तो मुझे मैंने पढ़नी और बच्चों को फिर डिलीवर कर। सो ये थर्ड ईयर की जर्नी ऐसी रही है। फिर फाइनल थर्ड ईयर के लास्ट तक फिर पैंडेमिक भी हिट कर गया, लाइक दैट टाइम द पैंडेमिक केम, राइट? सो एट दैट टाइम वी आर लाइक डिस्टॉर्टेड कि अब क्या करना है, कैसे कंपनीज आएंगी नहीं आएंगी, सारी चीजें एकदम बिखर गई। सारे सपने की कंपनी से प्लेसमेंट होगा भी या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें लगने लगी। बट ऐसा था कि अगर ऑन कैंपस भी कंपनीज नहीं आई सो ऑफ कैंपस फोकस करेंगे। सो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने थर्ड ईयर के मिड से पढ़ा प्लेसमेंट्स के लिए, प्लेसमेंट फोकस, और लास्ट आते तक फाइनल ईयर तक भी मैं स्टार्टिंग में पढ़ता रहा। और उससे फायदा हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट भी था मेरा ऐप डेवलपमेंट का। वो मेरे फाइनल ईयर के फर्स्ट टर्म में ही कंपनीज आई, कैपजेमिनी एंड लाइक दैट आई क्रैक्ड इट। सो आपने जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड भी कुछ था थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में? वैसे तो पैंडेमिक आ गया था बीच में। लाइक द ट्रेनिंग फॉर द प्लेसमेंट्स, जो एक हमारी करिकुलर में होता है ना इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में। It's in third year. So third year में मैंने ट्रेनिंग करी थी. I have done Android app development training. That I have done from Internshala, right? Means that I have done from that organization. So ट्रेनिंग से भी काफी ज्यादा, क्योंकि वो करिकुलम का भी पार्ट होता है, करिकुलम में भी सबमिट करना है। और मैंने तो फोकस उससे नहीं किया था कि मुझे सबमिट करना है। ट्रेनिंग में एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाह रहा था। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्या होता है मैं उसको करूँ, क्यों ना एक ऐप बनाऊं। और फिर मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट करी और उससे मैंने 2 से 3 ऐप मैंने डिजाइन करे। मींस मैं ऐप को बना चुका था और वही एक बहुत अच्छा ऐप बनाया था मैंने, जो कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी डाला था। ओके। सो आपका जो प्रोजेक्ट था, मींस आप मुझे हम सबको ये बताएं कि एक प्रोजेक्ट का कितना महत्व होता है एंड जो प्रोजेक्ट होता है उसको कैसे हमको चूज करना चाहिए। बिकॉज आप जानते हैं कि हमको रेज्यूमे में हमसे सबसे मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एक्चुअली हमारे पूरे कोर्स का सार होता है। मींस इट्स ए फाइनल टच वी आर गिविंग टू आवर डिग्रीज, राइट? सो आप प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। प्रोजेक्ट मेरे को भी डिसाइड करना था काफी टाइम से। क्या रहता है कि थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर से एक माइंड में जाता है कि प्रोजेक्ट बनाना है, सीनियर्स गाइड करते हैं, प्रोफेसर्स बोलते हैं प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट पर फोकस करो। उसमें भी क्या रहता है, प्रोजेक्ट की भी मैंने बनाने से पहले, जब मैं एंड्रॉइड ऐप बना भी रहा था, उसके पहले मैंने काफी रिसर्च करी कि किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाऊं, कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और लाइक क्यों प्रोजेक्ट बनाना होता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कवर किया। मैंने ये जाना कि प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में ना हो, कि एक
कोई आपने एक प्रॉब्लम को ढूंढो और उसको सॉल्व करना है, कि एक आप कुछ अलग चीज बनाओ जो अभी तक नहीं है, तब आपका वो प्रोजेक्ट काफी अच्छा होगा। सो फर्स्ट यही आपको एक कोई प्रॉब्लम को ढूंढना है, एक बहुत जो ऐसी चीज हो जिसकी लोगों के पास नेसेसिटी है और उसका आप सॉल्व कर सके, तो उस वो प्रोजेक्ट की एक अलग ही वैल्यू रखती है। दूसरी चीज कि आपको एक टेक जो आप टेक्निकल जो आप टेक्नोलॉजी यूज करने वाले प्रोजेक्ट के लिए, वो एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस पे आप वर्क करो। या आप मतलब काफी सारे ऐसे डोमेन्स, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, वेब डेवलपमेंट आप लिखना सकते हो, ऐप डेवलपमेंट आप लिखना सकते हो, मशीन लर्निंग है, एआई है, काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है इस पर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। आप रिसर्च करो, थोड़ा पता करो क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस पे आप न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ऐसा करके और आप फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। न्यू आइडियाज जो हमारे दिमाग में आती हैं उसको प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश किया जाए, तो ताकि वो बेनिफिट्स कर सके आगे जाके, राइट? सो नाउ आई विल कम टू मीन्स आपका जो कैपजेमिनी का जो पूरा होल प्रोसेस था। सो आप 4th ईयर में आ चुके हैं, राइट? सो 4th ईयर का कैसा एक्सपीरियंस है? मीन्स हम 4th ईयर में अराउंड अगस्त के बाद वाला जो सेशन रहता है 4th ईयर का रहता है। So yeah, means I have completed my engineering. Okay, आपने pass out. अच्छा pass out from college. Okay, नहीं मीन्स जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपका जो कैपजेमिनी कब आपके यहाँ मीन्स आई थी? Okay, yeah, जब वो चीज कैसे स्टार्ट किया? So yeah, it came in like I don't remember the exact date, but yeah, it came in something like August September in the final year. Like सेशन स्टार्ट ही होता है जुलाई में, सेशन स्टार्ट होता है, तो जुलाई के एक मंथ बाद अगस्त आ गए। काफी ज्यादा ऐसे मींस लाइक कॉलेज में एकदम वो माहौल ऐसा हो गया थोड़ा सीरियस सा कि सबको प्लेसमेंट चाहिए, लाइक एवरीवन वांट टू गो इनटू द कंपनी बिकॉज़ कैपजेमिनी काफी पॉपुलर कंपनी, काफी बिग एमएनसी है। या तो वो काफी ज्यादा वो माहौल आ चुका था, सब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। कॉलेज ट्रेनिंग थी, एक कॉलेज ने भी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करके हमें भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी कि लाइक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कैंपस। सो वो भी मैंने अटेंड करी और पहले से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। सो वो सब मिला के लाइक कैपजेमिनी आए, और फिर कैपजेमिनी के लाइक 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट इज लाइक द रिटन राउंड, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में लाइक कोडिंग राउंड होता है जिसमें सूडो कोड्स आते हैं, सूडो कोड के साथ डेटा स्ट्रक्चर रहता है, इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड राउंड में इंग्लिश राउंड होता है, और थर्ड राउंड जो होता है वो होता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड। कैपजेमिनी का एक डिफरेंट लाइक एप्टीट्यूड राउंड होता है जो कि होता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड। सो या ये लाइक एक प्रोसेस था कैपजेमिनी का, काफी मतलब स्टार्टिंग में ही कैपजेमिनी हमारे कॉलेज में आ चुकी थी। सो आफ्टर द रिटन टेस्ट मींस आपका रिटन टेस्ट का क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, एंड आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से फेस करना है, इनकी प्रिपरेशन आपने किस तरीके से की थी? इनकी प्रिपरेशन की ऑब्वियसली जो मैं पहले से प्रिपरेशन कर रहा था, जो मेरी लाइक थर्ड ईयर की लास्ट की मेहनत थी और फाइनल ईयर के पहले जो मैंने स्टार्टिंग में मेन स्टडीज करी थी वो काम आई। सो इसके लिए क्या रहता है, कोडिंग प्रैक्टिस आपको काफी करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफी सारी हैं जो भी आपको इंटरेस्टेड, लाइक C++, जावा, पाइथन। सो कोई भी आप लैंग्वेज को प्रैक्टिस करिए, पहले पूरी लैंग्वेज जानिए, फिर उसकी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए। सूडो कोड जैसे आता है कई सारी कंपनी, सूडो कोड की प्रैक्टिस कीजिए। सूडो कोड कुछ नहीं होता है। सूडो कोड का मतलब ये होता है कि लाइक उसमें डायरेक्ट वो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में हम लिखते हैं प्रिंट एफ फॉर प्रिंटिंग एनीथिंग, सो सूडो कोड में डायरेक्ट लिखते हैं प्रिंट फॉर प्रिंटिंग, राइट? सो मींस डायरेक्ट सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं सूडो कोड में, विदाउट फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अ लैंग्वेज, और ऐसे सूडो कोड्स होते हैं। सो ऐसे मैंने प्रैक्टिस करी, सूडो कोड से प्रैक्टिस करी, मैंने डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा, मैंने एप्टीट्यूड काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, काफी एप्टीट्यूड का भी फोकस रहता है प्लेसमेंट्स में, और टेक्निकल स्किल्स तो ऑब्वियसली अपनी कोडिंग प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। सो जो और क्वेश्चन का लेवल आपने से पूछा, तो क्वेश्चन मेरे को वैसे सारे ही दिखे, मींस इजी टू हार्ड, हर टाइप के क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन आप मींस वही शो नहीं होगा, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कैसा है। टाइम लिमिट भी रहती है काफी ज्यादा हर टेस्ट के विंडो में, तो उसको लेके आपको फोकस होकर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इजी क्वेश्चंस आप जल्दी हो जाएंगे, मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी थे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है सॉल्यूशन को आने में। कोडिंग क्वेश्चंस को आपको लाइक पूरा उस क्वेश्चन में बिल्कुल इसमें इन डेप्थ आपको जाना पड़ता है कि कैसे कोड रन कर रहा है, अगर फॉर लूप है तो फॉर लूप कहाँ तक जा रही है, ब्रेक तो नहीं लगा हुआ है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट, सारी चीजों को नोटिस करते हुए फिर जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। It's a very good thing.
एंड इसमें जैसे आपका पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज मीन्स आपका पकड़, तो वैसे आपको बहुत सारे लैंग्वेज उस समय नॉलेज में थे, इसमें आपका सबसे फेवरेट लैंग्वेज कौन सा था, मीन्स आप जिसमें आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग रीच थी? क्या मीन्स एज एन मीन्स अगर मैं आपको लैंग्वेज का बताऊं तो मेरे को ऐसे मीन्स मेरा जो मेरे को बहुत अच्छे से आती थी वो थी कॉटलिन। तो कॉटलिन एंड्रॉइड डेवलपमेंट की लैंग्वेज थी, तो वो उतना ज्यादा उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे प्रोग्रामिंग में। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं, हाँ, तो प्रोग्रामिंग का मेरे डायरेक्ट नॉलेज सबसे ज्यादा नॉलेज था वो था सी प्रोग्रामिंग मीन्स काफी अच्छे से मेरे को आता। सो टेस्ट ऐसा जैसे मैंने आपको टेक्निकल राउंड का बताया था फर्स्ट राउंड का। सेकंड इंग्लिश का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंग्लिश राउंड में भी क्या होता है कि पैसेजेस रहते हैं, काफी सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कम्युनिकेशन वाले रहते हैं वो सब आते हैं। सो वो राउंड में भी टाइम ड्यूरेशन की बहुत वो रहती है कि आपको थोड़ा इंग्लिश भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो राउंड आपका क्वालिफाई होगा। और गेम बेस्ड तो एक नेक्स्ट लेवल पे ही रहता है, उसमें मीन्स हर तरीके से आपको मीन्स लाइक दे स्टक यू इन दैट गेम, दैट आपको टाइम की अवेलेबिलिटी भी है कि टाइम बहुत कम है आपके पास। आपको अपना पूरा ब्रेन भी लगाना है एप्टीट्यूड में, जो उसका एप्टीट्यूड है उस गेम का। काफी डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आप देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। और फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या हुआ था कि गेम बेस के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। सो वो एलिमिनेशन तो नहीं होता है, कई लोग उसको भी एलिमिनेशन समझते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि आपकी वो पोजीशन के रिगार्डिंग होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन मिलेगी। आपका टोटल और इसके आगे क्या हुआ रिजल्ट, पर्सनैलिटी एंड पूरा उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू वो जज कर सकते हैं। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, यू कांट हाइड समथिंग फ्रॉम इनसाइड, मींस आपका पूरा टेस्ट थ्रू साइकोमेट्रिक करते हैं। यस। तो उसके बाद क्या हुआ कि रिजल्ट्स की अगर बात करूं, सुसाइड 4-5 डेज हमने वेट किया था, और रिजल्ट हमें कॉलेज की तरफ से ही आ गया क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। सो कॉलेज की तरफ से हमें एक मेल आया, उसमें सारे बच्चों लिस्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। सो वैसे रिजल्ट आया और टेस्ट भी खत्म हुआ। सो उसके बाद ऐसे कि हमें वही सबको वो रहता है एक डाउट कि कब रिजल्ट आएगा। सो हमने प्लेसमेंट को भी वो किया, लेकिन वही है कि आप एक ड्यूरेशन रहेगी 4 to 10 डेज की, उसके अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आए तो कई बार एक्सटेंड हो जाते हैं और लेट भी आता है। और अगर आपको ऑफ कैंपस रहा, ऑफ कैंपस पे मुझे थोड़ा सा पता है कि अगर ऑफ कैंपस भी रहा तो आपको डायरेक्ट मेल आएगा आपके रिजल्ट, यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट इंटरव्यू और नॉट। और फिर जब इंटरव्यू प्रोसेस रहती है, वो उसकी एक भी डेट आती है, कंपनीज आपको इन्फॉर्म कर देती हैं कब आपका इंटरव्यू रहेगा। वो भी 10 to 15 डेज होता है। हमारे टाइम पे भी थोड़ा और एक्सटेंड हो गया था, 25 डेज समथिंग बाद हमारे इंटरव्यू से। सो एक अच्छा टाइम मिल गया इंटरव्यू के लिए भी और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट कंपनी थी हमारी, फर्स्ट कंपनी को हम अप्रोच कर रहे थे। सो उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन कुछ की थी? आपने शुरू में आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, सो आपकी क्या प्रिपरेशन थी, आपने कैसे प्रिपेयर किया था? और टेक्निकल राउंड एंड एचआर राउंड, ऐसे कुछ प्री कॉन्सेप्शन दिमाग में करके गए थे कि कैसे क्या था प्रिपरेशन? या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आप सारी वो चीजें बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहे हैं जो एक बिल्कुल इंटरव्यू के पहले अपने माइंड में रहती हैं कि सारी चीजें कि क्या करूंगा मैं, कैसे होगा। एक इंटरव्यू के पहले तो आपका भी, जैसे आप लोग जो भी देख रहे हो, जब भी आपका इंटरव्यू रहेगा ना, आप बहुत ज्यादा नर्वस रहोगे कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस माइंड में रहेंगे कि टेक्निकल में अगर ये पूछ लिया तो कैसे बताऊंगा, ये पूछ लिया तो कैसे होगा। सो मैं भी काफी नर्वस था। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने आज तक इंटरव्यूज नहीं दिए थे। सो मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था मैं भी। पर मैंने क्या किया, मेरे को तो यही था कि मैं प्रिपेयर तो करूंगा। मतलब मैं प्रिपेयर किया काफी अच्छे से इंटरव्यू के लिए। मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस पढ़े, काफी एमसीक्यू थोड़े, थ्योरीज पढ़ी मैंने, जो हमारी लैंग्वेजेस मेरे को आती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में वो सब पढ़ा मैंने। और कंपनीज का भी आपको वो जो जब टेस्ट कंपनीज लेती हैं, जब उनकी जो प्रोफाइल रहती है, उसके जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो भी आप एक बार पढ़ें कि अगर उन्हें स्पेसिफाई कर दिया है उनको इस टेक्नोलॉजी पे वो वर्क कर रहा है, इस पे उनको आगे काम करो, तो एक प्लस पॉइंट है। आप उस लैंग्वेज के बारे में अच्छे से पढ़ें, उससे भी क्वेश्चन आप डेफिनेटली इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने करी और मैंने प्रॉपर स्टडी करी इंटरव्यू के लिए। मींस हर डोमेन में मैंने सॉफ्ट स्किल के बारे में भी और काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिपेयर करेगी। कैसे अगर ये क्वेश्चन आ गया कि वेयर यू सी योरसेल्फ इन 5 years, और काफी ऐसी चीजें होती हैं कि स्किल्स के बारे में, मतलब सॉफ्ट स्किल के बारे में इंटरव्यूज पूछते हैं, कई बार क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो वो सारे सिनेरियोज के हिसाब से मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन। सो ये जो चीज जो आप बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के। अगर सोचें कि आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए एंड आपकी जो सॉफ्ट स्किल वाली जो चीजें हैं, जो मैनेजरियल क्वेश्चंस होते हैं थ्रू एचआर,
तो उसके लिए भी प्रिपरेशन, इट्स ऑल अवेलेबल इन इंटरनेट वैसे, लेकिन हमको उसकी प्रिपरेशन अलग से करनी चाहिए एंड आपने की। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस नाउ, कि आपने कैसे इंटरव्यू का कैसे आपका आया, आपको लिंक आए होंगे, कैसे आपने, इट्स ऑल वर्चुअल हुआ होगा तो, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था। सो सम लोग, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑफलाइन की, लेकिन वर्चुअल था। कितने पैनलिस्ट थे एंड कैसा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, शेयर करें। Yeah. So yeah, as like I have already told that I am nervous, right? It's my first interview. मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कैसा इंटरव्यू होने वाला है, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या चीजें होंगी, सब कुछ मेरे साथ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बट आई डन माई प्रिपरेशन और या आई हैव गॉट दैट, लाइक हमें डेट मिल गई और स्लॉट भी मिल गया कि इस दिन हमारा इंटरव्यू होगा। सो लाइक जब जिस दिन इंटरव्यू था उसके पहले मतलब काफी एकदम लाइक बॉडी में एकदम वो रहता है कि एक्साइटमेंट, और मीन्स एक तरीके से कहते हैं कि लाइक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि कैसे पढ़ें, क्या कुछ रह गया, मेरा क्या छूट गया। तो बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं आप उस दिन और पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो वही सब मैंने किया। और जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मतलब जिस दिन था उसके पहले भी मैं कुछ चीजें ऐसे देख रहा था सुबह तक, फिर मैंने थोड़ा टाइम का गैप लिया जब इंटरव्यू था, और फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। सो इंटरव्यू में लाइक as like you have also seen lots of videos, like interview में हर डोमेन से क्वेश्चंस वो पूछते हैं। like first क्वेश्चन यही रहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एक इंट्रोडक्शन वो पूछते हैं अपन से अपने इंटरव्यू के बारे में। सो अपन बताते हैं अपना इंट्रोडक्शन, लाइक what we have done, what are our technical skills, where we have done our internship, projects, all these things, ये सारी चीजें हमने बता दी। उसके बाद मेरे से कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी उन्होंने करे कि इंटर्नशिप करी, तो जैसे मेरी लाइक जो टैक इंटर्नशिप, मतलब मींस टाइप जो मेरी टैक इंस्ट्रक्टर की इंटर्नशिप भी थी, लाइक द लीडो वन, तो उससे भी उन्हें क्रॉस क्वेश्चन करे। तो आपको अगर बच्चों को पढ़ाते तो फर्स्ट चीज आप क्या बताते थे, कैसे उनका लाइक फर्स्ट आप उनको प्रिपेयर कराते थे उनको उसके लिए। और लाइक लीडो जियो में भी जो मैंने इंटर्नशिप करी थी, तो उससे भी उन्हें काफी क्रॉस क्वेश्चन करे। तो आप कैसे एसएमबीज को अप्रोच करते थे, क्या टेक्नोलॉजीज आप बताते थे, और प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड काफी सारे क्रॉस क्वेश्चन करे उन्होंने कि ये आपने, मेरा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट था, मेरा एक ऐप बनाया था मैंने, तो उस ऐप से रिलेटेड काफी उन्हें क्वेश्चन करे। कौन सा आपने फ्रेमवर्क यूज किया, राइट, आपने कौन सी लैंग्वेजेस यूज करी, कैसे कैसे उसको ऐप को डिजाइन किया, क्या इफ आई ओपन द ऐप सो हाउ इट विल लुक लाइक, ये सारी चीजें उन्हें पूछी। और ऐप इजी टू यूज है कि नहीं, क्या क्या आपको इसमें वो दिखते हैं, स्क्रीन दिखती है, ये सारे क्वेश्चंस थे। और अगर मैं और टेक्निकल के क्वेश्चंस की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ जो मेरे इंटरव्यू में थे वो तो इंटरव्यू टू इंटरव्यू चेंज भी हो जाते हैं, बट मेरे ऐसे थे कि सी और C++ में उन्होंने डिफरेंस पूछा था। C++ में आप क्या डिफरेंस पूछते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं, बॉटम अप अप्रोच किस लैंग्वेज में यूज होती है, ऐसे काफी सारे टेक क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे। इसमें आपका अलग अलग था कि टेक्निकल राउंड अलग से है, फिर HR राउंड अलग से है, कि सिर्फ एक ही फेज में आपका पूरा इंटरव्यू हुआ है? या सो कैपजेमिनी में लाइक 2 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट इज टेक्निकल एंड सेकंड इज HR। फर्स्ट राउंड भी एलिमिनेशन रहता है, अगर आप टेक्निकल भी इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं गया सो ऐसा हो सकता है कि आपका वो HR राउंड ही ना आए। सो उसके बाद फिर टेंशन क्रिएट होते हैं कि इंटरव्यू सब कुछ दे दिया, सारा इंटरव्यू अच्छे से चला गया, बट उसके बाद भी वो चीज रहती है कि लाइक वी विल गेट द सेकंड इंटरव्यू और नॉट, लाइक HR में। सो उसके लिए भी वेट करना रहता है कि कैपजेमिनी में तो मींस वो सेम डे पे ही HR इंटरव्यू ले लेते हैं ऑन कैंपस में। ऑफ कैंपस के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट ऑन कैंपस में सेम दिन ही HR हो जाता है। सो वो भी समथिंग उसी इवनिंग में हो गया फिर HR इंटरव्यू भी। HR इंटरव्यू थोड़ा छोटा रहा टेक्निकल से, टेक्निकल इंटरव्यू नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर भी जाते हैं, और HR इंटरव्यू समथिंग 10 to 15 मिनट्स का ही था। उसमें भी HR इंटरव्यू में उन्होंने पूछा लाइक वो थोड़ा कम्युनिकेशन और लाइक सॉफ्ट स्किल के लिए ज्यादा फोकस रहते हैं HR इंटरव्यू में, कि आपकी लाइक मैंने बताया था कि मेरी हॉबी है वीडियो मेकिंग, जैसा मैंने आपको बताया, आपको पता है यूट्यूबर, लाइक मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वीडियोस बनाते हो आप। तो मैंने बताया कि मैं ऐसे टैग के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, थोड़ा टेक्नोलॉजीज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है और जो मुझे पता चलता है, हाउ टू वीडियोस बहुत सारे जो रहते हैं वो सारी चीजें बनाता हूँ। उस टाइम भी मैंने एक रिसेंटली ट्विटर का एक वीडियो बनाया था कि ट्विटर हैक हो गया था उस टाइम, तो उस ट्विटर हैक के बारे में मैंने उन्हें बताया। सो ये सब चीजें उनको काफी वो करती हैं HR इंटरव्यू, उनको लाइक अपने प्लस जाती हैं। इसमें HR राउंड में आपको जैसे क्वेश्चंस पूछे होंगे, कब यानी किस तरीके के क्वेश्चन
पूछे हैं आपको इसमें? ओके, जैसे एचआर में जो आपको क्वेश्चंस पूछे हैं आप एचआर राउंड में, तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे, मींस आप कौन कौन से राउंड पूछे उसमें, मींस जैसे आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछे हैं या फिर आपके मैनेजरियल स्किल को चेक करने के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, इसके बारे में? हाँ, so first the same question, like where like tell me about yourself, that wants our introduction. So मैंने introduction बताया, उसके बाद उनके questions थे, like एक तो यही था कि what have you done other than academics के अलावा आपने क्या किया. So बताया मैंने clubs and all इन सारी चीजों का. So फिर उसको अगर स्किप करूं, मैं इससे क्यों एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको मैं $1 बिलियन दे दूं, so आप क्या करोगे उसका, कि आप उसको या लाइक उसको क्या करोगे आप उसको. कोई चॉइसेस नहीं दिए थे, सिर्फ पूछा था आपने $1 बिलियन आपको दे दूं, सो आप क्या करोगे. सो मैंने बोला था कि मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा, लाइक एक कंपनीज के जिसके काफी अच्छी वो ग्रो कर रही होगी, जिसके स्टॉक्स काफी अच्छे होंगे, मैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा. और या मतलब एक परसेंटेज मैंने बोला था कि मैं लाइक 70% इन्वेस्ट कर दूंगा और 30% मैं अपने पास रखूंगा फॉर फ्यूचर, माई फ्यूचर एंड माई हाउस होल्डिंग एवरीथिंग. सो उन्हें फिर क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप बिजनेस में नहीं करोगे क्या, आपके पास इतना सारा पैसा है तो आप क्या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की नहीं सोचोगे. सो मैंने कहा लाइक बिकॉज मेरे साथ ऐसा था कि मुझे बिजनेस में उतना इंटरेस्ट नहीं है और मुझे बिजनेस का उतना आइडिया भी नहीं था. तो मैंने कहा उनको कि मेरे को बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा, मेरे को उतना नहीं पता बिजनेस के बारे में. सो मुझे पहले काफी सारी रिसर्च करके फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा. सो एक यहाँ पे ये मैं ऐसे आंसर्स का एक लॉजिक में अगर मैं आपको बताऊं, एक बिहाइंड द लॉजिक, मतलब बिहाइंड इसका लॉजिक क्या था कि मेरे ऐसे आंसर्स देने का, कि एक एचआर ये भी चाहता है कि वो आपकी लॉजिक्स देखता है कि उन्हें क्वेश्चंस एचआर में पूछते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कैसा लॉजिक उन क्वेश्चंस पे डेवलप करते हो, आपका आंसर लॉजिकल है कि नहीं, आप ऐसे तो नहीं हवा में बातें कर रहे हो. एचआर को सब पता होता है, लाइक दे आर टेकिंग इंटरव्यूज फ्रॉम ईयर्स. सो वो सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं. अगर आपके आंसर में उनको लॉजिक लगेगा, सो डेफिनेटली दे विल गो थ्रू यू. Otherwise, if they don't think your answer is worthy, so maybe there's chances of like they don't think you are that much good. So ऐसे ही काफी और भी क्वेश्चन होते हैं, like where you see yourself in 5 years and like why we select you, what's special in you. So ये सारे क्वेश्चन एचआर में होते हैं. और एक आप लॉजिकल थिंकिंग के साथ एक आंसर देंगे, आंसर को स्टार्ट करेंगे, so वो काफी अच्छा आपका आंसर है. जैसे ये तो एचआर राउंड का है. टेक्निकल राउंड का आपको एक समरी की आपसे आपके इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह पूछे. तो लाइक टेक्निकल राउंड में भी आपसे कुछ इस तरीके के बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो आपको थोड़ा सा इंट्रिग किया था, थोड़ा सा आपको लाइक थोड़ी देर के लिए आपको पॉज कर दिया था, ऐसे कोई क्वेश्चंस पूरे इंटरव्यू में आपसे हुए थे? लाइक या ऐसा बिल्कुल आप होता है कि एक ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मींस टेक्निकल डोमेन से भी आ सकते हैं और एचआर साइड से भी आ सकते हैं कि आप एक सेकंड के लिए स्टक हो जाएंगे कि लाइक इसका आंसर क्या होगा. या लेकिन दे विल गिव यू टाइम, लाइक इफ यू विल आल्सो से दैट सर आई वांट सम टाइम, सो या दे विल गिव यू 30 seconds to 1 minute to think about that question and answer it. So like मेरा जैसे कि यही वाला क्वेश्चन भी था $1 बिलियन वाला, मैं एकदम से मैंने स्टार्ट नहीं कर दिया बताना कि मैं ये करूं, प्री थिंकिंग थोड़ी थी मेरी, मैंने पहले सोच रखा था कि ऐसा आंसर दे दूंगा मैं. तो मैंने थोड़ा एक प्लानिंग करी, उन्हें बोला क्वेश्चन, तो मैंने ऐसे थोड़ा सोचा कि मैं क्या करूंगा एग्जैक्टली, और थोड़ा ऐसे स्टक होके भी मैं मतलब थोड़ा पहले तो ये लगा मैं क्या बताऊं, एकदम ऐसा क्वेश्चन आया है कि बिल्कुल मैं एकदम से क्लिक नहीं कर पा रहा था, मैं इसको कि क्या आंसर करूं. बट मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि अगर मेरे पास सही में ऐसा एक पैसे आएंगे तो मैं ये करूंगा एग्जैक्टली, और मैंने एक थोड़ा लॉजिक के साथ आंसर को स्टार्ट. ऐसे टेक्निकल राउंड में भी हुआ था, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि आप यहाँ मींस उसका एकोमोडेशन का वो रहता है कि आप यहाँ पर आएंगे कि नहीं, राइट, लाइक लोकेशन वेयर यू विल गेट योर जॉब. सो मैंने कहा पहले एकदम से मैं उसके लिए भी वो हो गया कि लाइक आई विल गो देयर और नॉट, कोरोना इज गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग. बट या एज they also know, companies also know that they don't call you in the pandemic only, right? If everything stops, then they will call you. So they ask me like randomly, so do you want to come here to join the organization or not? So yeah, first of all I am like stopped for a moment, and then I said yeah, I will come. Obviously I will come if there is a requirement, I have to come for a project or the team, right? In a case I will come.
So after the interview means आपकी आपको इंटरव्यू के बाद आपको कब उसका रिजल्ट आया एंड व्हाट वाज द का रिएक्शन कैसा था, आपकी फैमिली का रिएक्शन किस तरीके से था मींस Yeah. So interview के I think like 10 to 15 days after result आया और like sorry like it's come in between 10 days like 4 to 10 days के बीच में वो रिजल्ट आ गया था. Exact date मुझे याद नहीं है but yeah like 15 days something में रिजल्ट आ गया. जैसे ही रिजल्ट आया so yeah like first of all इस रिजल्ट आया मेल के थ्रू रिजल्ट आता है. कॉलेज ही इन्फॉर्म करता है, कंपनी कॉलेज का ऑन कैंपस कॉलेज से कांटेक्ट करती है, टीएमपी हमको मेल कर देंगे, वो आपको लिस्ट भेज देते हैं स्टूडेंट प्लेस स्टूडेंट्स. सो मेल आया और ऐसा था कि शायद मेरा इंटरनेट भी जब ऑफ था, मेरे को नहीं पता था कि रिजल्ट आ चुका है. मेरे फ्रेंड से कॉल आया कि लाइक चेक योर रिजल्ट, द रिजल्ट हैज केम फॉर कैपजेमिनी. सो मैंने जल्दी से अभी जाया था, लॉग इन करा था. फिर एक दो फ्रेंड से और कॉल आए, सो वो सीधे बोलने लगे लाइक कांग्रेचुलेशन यू गॉट प्लेस्ड. सो मुझे उस टाइम तक विश्वास नहीं हो रहा था लाइक सीरियसली आई एम प्लेस्ड, लाइक ऐसा मैंने क्या किया तो मैं प्लेस्ड हो गया. सो ऐसे करके, और क्योंकि कंपटीशन भी काफी ज्यादा रहता है लाइक ऑल कॉलेज इज पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट राइट, ऑल द ब्रांचेस दैट आर एलिजिबल. सो बहुत ज्यादा वो होता, और कंपनीज भी ऑन कैंपस में भी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेती हैं लाइक 20-30 मैक्स. दिस इज द नंबर from government college. From private its number is a little bit increased, but yeah, government side from this only. So what happened when I checked the result, like that I confirmed it. So like एक बार में तो मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि like seriously मेरा नाम है लिस्ट में. पहले तो मुझे नाम ही नहीं मिला था मेरे लिस्ट में, कि इतने ज्यादा एंग्जियस थे, इतना ज्यादा मेरे को नाम नहीं मिला. मैंने फिर से एक फ्रेंड को कहा कि मैंने कहा मेरा नाम नहीं है इसमें, तुम लोग क्यों कह रहे हो प्लेस हो गया. कह रहे नहीं अच्छे से देख, उन्हें नंबर भी बताया प्रॉपर इस नंबर पे. फिर जब जाके मेरे को मेरा देखा और उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ या आई गॉट प्लेड. मैंने एक बार फिर से एक्सेल शीट डाउनलोड करी और रिजल्ट देखा कि हाँ मैं सही में हो गया कि नहीं. फिर रिजल्ट लाइक मेरे को बिलीव हुआ. और फिर घर पे भी काफी ज्यादा बताया, तो काफी एकदम एक्साइटमेंट रहती है कि लाइक आई गॉट प्लेस. और पैकेज भी एक अच्छा पैकेज था लाइक 3.8 lakhs. सो क्योंकि अभी तो कुछ नहीं था, लाइक वी आर stand nowhere, but suddenly we got like this much package. So it works a lot, like means for family, like from family side, from friend side, from college side, it's a very big achievement for like in one person. And you were in just your 4th year and आप अभी भी कॉलेज में थे and आपका रिजल्ट आ गया एंड इट मींस आप उन कैंडिडेट से प्लस साइड में थे जो अभी तक प्लेस नहीं हुए थे. सो वो भी एक अच्छी फीलिंग्स रहती है शुरुआत में ही प्लेस हो जाना, राइट. सो अभी आप एक्सेंचर में प्लेस हैं, राइट. सो आपका मीन्स अभी कैसे चल रहा है अभी? आप आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, ट्रेनिंग हो रही है, कि किस तरीके से आपका अभी चल रहा है मीन्स? या सो एक्सेंचर का ऑफर मुझे लाइक कॉलेज लाइक फाइनल ईयर के एंड में मुझे लाइक इसकी ड्राइव थी, ऑफ कैंपस ड्राइव थी. एक्सेंचर हमारे कॉलेज नहीं आती, तो उसको मैंने अप्लाई किया था एंड लाइक दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट. एंड फिर मुझे ज्वाइनिंग मिल गई थी 28th of June. लाइक प्रीवियसली 2 months वर्किंग हियर, लाइक आई एम ऑनबोर्डेड कंप्लीट, आई हैव डन माय ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ. लाइक या मेरी ट्रेनिंग चल रही है एज वी ऑल नो दैट स्टार्ट कंपनी हमारी ज्वाइनिंग स्टार्ट होने के बाद भी एक कंपनी ट्रेनिंग भी चलती है, कंपनी की तरफ से भी ट्रेनिंग, लाइक यू नो द स्किल्स, बट दे ऑल्सो वांट टू ट्रेन यू कि हमारे तरीके से कि जो हम वर्क करेंगे उस पर बेसिकली. सो वो मेरी सारी ट्रेनिंग चल रही है, लाइक लैंग्वेज फोकस भी और जो वर्क है उसके फोकस भी ट्रेनिंग चल रही है. तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कैपजेमिनी में जो आपका हुआ था तो आपको पोजीशंस क्या मिली थी? आपको पोजीशन जो मिली थी जीईटी मिली थी? या सो द पोजीशंस जो मेरी कैपजेमिनी आई थी वो थी एनालिस्ट पोजीशन. दैट इज द लाइक एनालिस्ट पोजीशन ऑफ 3.8 lakhs, like the package of that. और एक और पोजीशन होती है कैपजेमिनी में लाइक सीनियर एनालिस्ट, राइट. इट केम विद 7 lakhs package. Yeah, so that we didn't hear in our college. Means that Capgemini didn't come with that package. Covered analyst only. So yeah, I got it. Okay, so means आपने फिर आपने जैसे ज्वाइन नहीं किया तो इसके पीछे आपका मीन्स क्या था? आप क्या चाहते थे और जो आपने प्लेस हो गए लेकिन आप फिर भी ज्वाइन नहीं किया आपने, इसके पीछे क्या?
हाँ, सो एज लाइक कैपजेमिनी मैंने काफी पहले मेरा प्लेसमेंट हो गया था, लाइक 1 year बिफोर, लाइक बिफोर एक्सेंचर. सो दैट टाइम आल्सो व्हाट हैपेंड कि कैपजेमिनी एक लेटर ऑफ इंटेंट, सारी कंपनीज एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजती हैं, लेटर ऑफ इंटेंट साइन करा लेती है. सो लेटर ऑफ इंटेंट तो मैंने साइन कर दिया था. And when the time came, like we are graduated from college also, and didn't till then didn't the Capgemini offer didn't came. So I am keep on waiting, like Capgemini offer will come, like the offer letter is not coming from Capgemini side. And also we have done pre-training also. There are 2 pre-trainings of Capgemini, and both of them I have completed in college duration only. So we are keep on waiting for Capgemini. And जब मेरा एक्सेंचर का प्लेसमेंट भी हो गया, सो एक्सेंचर का मुझे लेटर ऑफ इंटेंट आया, ऑफर लेटर भी आ गया. मींस काफी जल्दी उन्हें प्रोसेस फॉरवर्ड करी और ऑफर लेटर भी आ गया, ज्वाइनिंग डेट आ गई एक्सेंचर की. एंड आई एम कीप ऑन वेटिंग फॉर कैपजेमिनी. मींस अभी भी कैपजेमिनी का मुझे ऑफर लेटर नहीं आया था. सो दैट्स व्हाई आई चूज एक्सेंचर. ऑल्सो द सेकंड थिंग इज दैट आई कंपेयर्ड बोथ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. लाइक मैंने काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब ये वाली एक जो बिहाइंड थिंकिंग की आपने पूछा ना कि क्यों आपने ऐसे ज्वाइन करी, तो ये भी एक कारण था कि मैंने दोनों कंपनीज को कंपेयर किया, उन सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे, मुझे ज्यादा अच्छी लगी. दैट्स व्हाई आई हैव चूज. बिकॉज अगर मुझे नहीं चूज करना होता एक्सेंचर तो मैं उनका होल्ड भी कर सकता था, राइट, एज मच आई कैन होल्ड फॉर दैट. बट मुझे अच्छा लगा. एंड लाइक द पेज ऑफ एक्सेंचर इज आल्सो 4.5. So that's why I have moved to. Hemant, I think I have covered all the main topics and your experience and your hurdles in your life experience through all the engineering process में आपका पूरा academics के हमने आपका experience लिया, and it was good to hear you. And you are YouTuber also, Hemant Manjhi. Yeah. And everyone can search him. And बहुत अच्छा लगा आपसे पूरा आपका एक्सपीरियंस जान के. And so thank you very much, Hemant, for joining us. And Thank you. hope you get all the, please आपको आगे सक्सेस और मिले, and आप जिस जगह पे फोकस कर रहे हैं आप उसमें ग्रो करें. Yeah, thank you for having me here. Like it's a wonderful opportunity, I will say. मुझे भी काफी अच्छा लगा like interact करके और सारे work. Yes. Yeah. Okay. Thank you, Hemant.